السلام علیکم، ہم ڈاکٹر شبانہ خانوار سے آپ کے سامنے اسلامی فہرست لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ تیسرا پارہ تلک الرسول اور سورہ البقرہ کی 35ویں رکوع کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک کون سی خبر پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ قال ابراہیم رب الذی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ وہ میرا رب ہے کہ جلاتا اور مارتا، یوں ہی وہی بھی تو جلاتا اور مارتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ الحمدللہ کثیرا۔ قال انا احیی و امیت، بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس، ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، یعنی مشرق کی طرف سے۔ فات بها من المغرب فبہت الذی کفر، تو اس کو پچھم سے لے آ تو ہوش اڑ گئے کافر کے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ او الذی مر علی قریۃ، یا اس کی طرح جو گزر ایک بستی پر۔ وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ ڈھہ پڑی تھی اپنے چھتوں پر۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، بولا اسے کیوں کر چلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس پھر زندہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ قال کم لبثت، فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، عرض کی کہ دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم۔ قال بل لبثت مئۃ عام، فرمایا نہیں تجھے 100 برس گزر گئے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کرے، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ظاہر ہو گیا بولا میں خود جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب عرض کی کیا ابراہیم نے یہ اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا۔ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں۔ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، اور پھر اس کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، اور پھر انہیں بلاؤ وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے۔ اور وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے، یعنی بہت بڑا حکمت والا ہے۔ تو سورہ بقرہ کے 35ویں رکوع میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے
ने कलाम पाक में हमारे लिए सबक दिया है कि ए महबूब, क्या तुमने ना देखा था उसे जो इब्राहिम से झगड़ा उसके रब के बारे में, उस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक नबी का नाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल ज़बीउल्लाह के बाप हैं और उन्हीं की नस्ल में से आगे चल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हुआ। और आबा व अजदा में आते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है कि क्या आप नहीं जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने से नमरूद बादशाह ने झगड़ा किया था, जबकि इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वह है जो जिलाता और मारता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब नमरूद बादशाह ने बुला के कहा कि तू एक खुदा का दावा करता है और अपने नबी होने का दावा करता है, तो क्या सबूत है कि तू नबी है, और क्या सबूत है कि तेरा अल्लाह है, कि तू खुदाई दावा कर रहा था। नमरूद लोगों से खुदा मनवाने के चक्कर में पड़ा था, अपने बादशाहत के गुरूर में था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा जिलाता है और मारता है। तो नमरूद बादशाह ने एक शख्स को कैद से निकलवाया और उस कैदी को कत्ल करवा दिया। कहा कि देख मैं भी मारता हूँ, और एक को छोड़ दिया, कहा देख मैं भी जिंदगी देता हूँ। अल्लाह अकबर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि एक शख्स को मार और फिर उसे जिला, क्योंकि मेरा अल्लाह मारता है और जिलाता है। इब्राहिम ने फरमाया तो अल्लाह सूरज को लाता है पूरब से और तो उसको पश्चिम से ले। अल्लाह तबारक व तआला मशरिक से सूरज उगाता है तो तू मगरिब से जरा उगा के दिखा। तो होश उड़ गए काफिर के, तो उस बादशाह के होश उड़ गए थे और अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ जालिम बादशाह, तू इस तरीके का जुल्म करता है, लोगों पे खुदा बनने के गालिब आता है, तू जालिम है, कत्ल गारत करके, और तो कह रहा है कि मैं खुदाई दावा करता हूँ, मैं जिला सकता हूँ, मार सकता हूँ, जिंदगी दे सकता हूँ और मौत दे सकता हूँ। अल्लाह। तो इन्होंने उसे जालिम कहा। या उसकी तरह जो गुजरा एक बस्ती पर और वह ढह पड़ी थी अपने छतों पर से। ये उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा यहाँ पे बयान किया गया है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर थे। वो एक जगह से गुजर रहे थे तो देखा कि वीरान बस्तियां हैं, यानी वहाँ की बस्तियां वीरान हो गई थी, वहाँ कुछ नहीं था, छतें गिरे ढही पड़ी हुई थी। बोला उसे क्यों कर चलाएगा अल्लाह उसकी मौत के बाद, तो अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस तक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से बताया कि उज़ैर अलैहिस्सलाम का वो किस्सा किताबों में है, वो जरा पढ़ ले कि एक जगह से उनका गुजर हो रहा था जहाँ बस्तियां वीरान हो गई थी, वहीं पे वो ठहर गए। उनके पास कुछ खोशा खाने को था, अंगूर था और कुछ जौ का खोशा था। वो दो चीजें लिए हुए थे, पीने के लिए अंगूर का शरबत और कुछ खोशा जौ का लिया हुआ था। वहां पे ठहर गए और उसके बाद से वहीं वो पर्दा फरमा गए और गधे की सवारी वो कर रहे थे, वो गधा भी वहां था। 100 साल के बाद से जब 100 साल गुजर गए तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म रबी के तहत अपने माशियत इलाही के तहत उन्हें जिंदा किया। और जब जिंदा किया तो उसके बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आप कितने दिनों से यहाँ पड़े हैं, तो उन्हें लगा कि मतलब सुबह से हूँ और आज की ये शाम है, क्योंकि जब उन्हें जिंदा किया गया था तो असर का वक्त था, तो उन्हें लगा कि मैं सुबह से यहाँ हूँ, हो सकता है शाम हो गई हो। लेकिन जब उन्होंने अपने गधे की तरफ देखा तो गधा जो मर गया था वो उसकी हड्डियां बस बची हुई थी। हुक्म रब्बी के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मेरे पैगंबर, मैं तुम्हें पैगंबरी अता करता हूँ, जाओ अपने बस्ती में ऐलान करना कि मैं उज़ैर हूँ और अल्लाह का बनाया हुआ नबी हूँ। और इस तरीके से उन्होंने फिर गधे को कहा, देख तेरे गधे भी किस तरीके से गोश्त और पोश्त और खाल चढ़ जाता है, तो जो गधे की हड्डियों का कंकाल था देखते ही देखते उस पे गोश्त पोश्त और खाल चढ़ा दी अल्लाह तबारक व तआला ने। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। इस तरीके से उज़ैर अलैहिस्सलाम उस गधे पे सवार हुए और उसके बाद से अपने घर के पास गए। जब घर के पास गए तो एक बुढ़िया जो बहुत ही कमजोर लागर अपने पैरों से माजूर हो गई थी, बैठी हुई थी, वो उनके यहाँ की कनीज थी। इन्होंने उसे पहचान लिया
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और उसके बाद से कहा कि ये उज़ैर का घर है। उसने कहा कि हाँ, लेकिन आप कौन है? उन्होंने कहा कि मैं उज़ैर हूँ। तो उसके बाद से उसने कहा कि मैं नाबीना हो गई हूँ, मैं कैसे पहचानूंगी कि आप उज़ैर हैं? और बोले कि मैं अल्लाह ने मुझे नबूवत अता फरमा दी है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नबी हैं तो नबी के हाथ दुआ तो कबूल होती है, तो आप हमारे हक में दुआ कर दीजिए कि पहले सबसे पहले मेरी बीनाई आ जाए। बीनाई आ गई जब उन्होंने पहचान लिया उज़ैर अलैहिस्सलाम को। बस एक फर्क था कि उनके दाढ़ी और बाल सफेद हो गए थे और बाकी 40 साल की तकरीबन उम्र उनकी दिखाई दे रही थी। और उसके बाद से जब कनीज ने पहचान लिया तो उसने कहा कि हम मानते हैं कि आप नबी हो गए हैं, आप मेरे हक में दुआ करिए कि मैं अपने पैरों से माजूर हूँ, सही हो जाऊं। उन्होंने दुआ किया, वो सही हो गई। तो उन्होंने कहा घर के लोग कहाँ हैं? तो वो एक जगह कहीं के मजमे में गए हुए हैं, वहाँ लेके जाती हैं। और उज़ैर अलैहिस्सलाम का बेटा और पोता दोनों वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया उनके बेटे से कि ये उज़ैर अलैहिस्सलाम है, तुम्हारे बाप हैं। जब उनके बेटे की उम्र 118 साल हो गई थी, यानी 100 साल बाद ये फिर दोबारा इनको जिंदगी अल्लाह ने अता की थी। तो 18 साल का बेटा था, तो 18 साल का बेटा अपने बाप को जरूर पहचान सकता था। तो 118 साल, 100 साल बाद लौटे, 18 साल का बेटा था, तो 118 साल बेटे की उम्र हो गई थी। और जब इन्होंने देखा तो अपने बाप को पहचान लिया, पोता भी हो गया था। अल्लाह अकबर। इस तरीके से उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने नबूवत का ऐलान किया और उसके बाद से निशानियां कायम की, निशानियां बताई। लोगों ने कहा कैसे मान ले तौरेत, क्या तुम्हें याद है अगर नबी हो तो तौरेत तो उन्होंने पढ़ के सुनाया। उस वक्त उन लोगों के पास, क्योंकि बस्ती एक बार पूरी तरीके से उजड़ गई थी और फिर दोबारा बसी, तो इसीलिए उनके पास तौरेत किताब नहीं थी। तो एक इंसान ने कहा कि मेरे दादा ने बताया था कि फला जगह उन्होंने किताब गाड़ रखी है। अल्लाह अकबर। तो उसके बाद से वो किताब निकाली गई और उसके बाद से देखा गया तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने हूबहू तौरेत पढ़ के सुना दिया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। उन्हीं का ये किस्सा है कि वो गुजर रहे थे तो बस्ती ढही पड़ी थी अपनी, और बोला उसे क्यों कर चलाएगा अल्लाह उसकी मौत के बाद। तो अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस, फिर जिंदा कर दिया। फरमाया तू यहाँ कितना ठहरा? अर्ज किया कि दिन भर ठहरा होगा या कुछ कम। फरमाया तुझे 100 बरस गुजर गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम से कहा कि 100 बरस गुजर गए तुझे यहाँ। और उसके बाद से फिर उनके गधे को भी जिंदगी अता फरमाई, इसलिए कि तुझे हम लोगों के वास्ते निशानी करेंगे। और अल्लाह ने कहा कि ए उज़ैर, मैं तुम्हें अपनी तरफ से निशानी बना के भेजता हूँ, यानी अपना नबी बना के भेज रहा हूँ। और गधे की हड्डियों को इकट्ठा किया, उस पर गोश्त पहनाए। और जब ये मामला उस पर जाहिर हो गया, बोला मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। और जब अर्ज की कि इब्राहिम ने कि ए रब मेरे, मुझे दिखा दे तू क्यों कर मदद मुर्दे जिलाएगा। फरमाया क्या तुझे यकीन नहीं? अल्लाह अकबर। उज़ैर अलैहिस्सलाम की कहानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। उस दौर के जालिम बादशाह को अर्ज की यकीन क्यों नहीं, मगर ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए। अल्लाह अकबर। फरमाया तो अच्छा, 4 परिंदे लेकर अपने साथ हिला ले। और फिर हुक्म हुआ कि 4 परिंदे ले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यकीन के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ये शक के बिना पे नहीं, क्योंकि मुतशाबिहत के बिना पे तो ईमान हायल हो जाता है, लेकिन लोगों को साबित करने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मैं इन्हें दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से अल्लाह मुर्दे जिलाता है। तो फिर काश को ऐसा कर देता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हाँ, तो पर कुछ परिंदे ने, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 किस्म के परिंदे लिए और चारों के टुकड़े टुकड़े करके और 4 पहाड़ियों पे रखा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो अच्छा, 4 परिंदे लेकर अपने साथ हिला ले और फिर उनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पे रख दे और फिर उन्हें बुला, वो तेरे पास चले आएंगे पाँव से दौड़े हुए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। और जानकर अल्लाह गालिब हिकमत वाला है, उसकी कहावत जो अपने माल की राह में खर्च करते हैं लोग। तो ये कहानी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को फिर से साबित किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। और देखिए अल्लाह जिंदगी और मौत का मालिक है, अल्लाह कुल्ल शैइन कदीर है और वो बहुत इल्म और हिकमत वाला है। और वो जिसे चाहे जिस हाल में रखे। और इसी तरीके से जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो सारे परिंदे हुक्म रब्बी के तहत हाजिर हो गए। तो उन्होंने कहा कि जान रखो कि अल्लाह गालिब है तमाम अशिया पे, ये तमाम मखलूक पे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस रुकू से हमें ये सबक हासिल करना चाहिए
کہ انسان تو صرف ایک ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور اپنے مخلوق کی دیکھ بھال کے لیے اور ایک قانون قدرت بنایا ہوا ہے، وقت وقت پہ انبیاء اولیاء اشفیاء بھیجتا ہے تاکہ ہم راہ حق پہ چلیں اور جینے کا سلیقہ سیکھیں، علم و حکمت جانیں اور علم و حکمت کے تحت ہم حکم ربی کی اطاعت کریں اور ایک دن یوم جزا کے دن اس کے حضور حاضر ہوں تو ہم نادم و شرمندہ نہ ہو، بلکہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے اور یہاں سے ہم اپنے امتحان کو پاس کریں۔ ایسا بھی دیکھا، ایسا بھی کہیں آپ امتحان لینے والے کو دیکھے ہیں کہ پڑھاتا بھی ہو اور امتحان میں مدد بھی کرتا ہو، لیکن اللہ عز و جل بہت کریم ہے اور اس کا محبوب بہت رحیم ہے، اسی لیے ہر طریقے کے لوگوں کی شفاعت کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے اور اس پہ رحم کرتا ہے اور اپنے امتیوں کو بھی بتایا کہ رحم سے کام لیا جائے۔ یہ جتنی بھی حکایتیں کلام پاک میں بتائی گئی ہیں، ہمیشہ ہم لوگ بھی اگر آپ غور کریں، جتنے صاحب لباس ہیں جو خانقاہوں میں ہیں یا پھر جتنے بھی ظاہری یا باطنی جو بھی علماء ہیں، جب لوگوں کو کوئی دین کی بات بتاتے ہیں تو کسی نہ کسی انبیاء کا یا اولیاء کا یا اشفیاء کا حکایت یعنی اس کی کہانی سناتے ہیں تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں کہ ہاں میرے پچھلوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا، ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ایسا کر کے سبق حاصل کر لینا چاہیے۔ اور خوف خدا اور محبت خدا، یہ دو ہی چیز ہے جس کے بنا اس کا نظام چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی خوف سے اسے مانتا ہے، کوئی جنت دوزخ کی لالچ میں مانتا ہے، کوئی ثواب اجر کے لالچ میں مانتا ہے، کوئی اس کی رضا کے لیے ہر طریقے کی اچھی باتیں اچھے کام کرتا ہے اور خدمت خلق سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور یہ علم و حکمت کی کتاب ہے، ہماری زندگی میں جب بھی ضرورت پڑے اسے دہرا کے ہم اسے علم و حکمت حاصل کر سکتے ہیں اور فیض حاصل کر سکتے ہیں، اور جس بھی علاقے میں رہیں اگر ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں تو دوسروں کو بتانا چاہیے اور اس کتاب کی تعظیم کرنا چاہیے۔ یہ اگر ظاہر ہے اور باطن اہل بیت اطہار ہیں، یعنی باطن قرآن اہل بیت اطہار ہیں اور یعنی اصلی قرآن وہ ہیں، انہیں جاننے کے لیے اس قرآن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس سے ہمیں علم عطا ہو جاتا ہے اور ان سے حکمت عطا ہو جاتا ہے۔ علم و حکمت کے بنا پہ ہم چل کے اور بارگاہ عزتی میں منہ دکھانے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ دین و دنیا دونوں میں کامیابی و کامرانی ہمیں حاصل ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں کلام پاک جاننا چاہیے اور اس کے بارے میں اللہ ہمیں سمجھ دے۔ جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے اہل بیت اطہار سے اسے اتنا ہی یہ سمجھ میں آتا ہے، اسی لیے سمجھ میں آیا کہ اہل بیت اطہار کے دامن کو کس کے تھام لینا چاہیے۔ یہ وہ گرہ ہے جو ہم چاہ کے بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس گرہ سے جڑ جاتے ہیں تو گرہ خود ہمیں باندھے رکھتی ہے اپنے آپ سے۔ یا وارث اللہ وارث۔